लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट हाउ डिड यू फाइंड द पेपर, कैसा था, किस तरह के क्वेश्चंस आपको लगे. आई फील कि VARC was again on the similar side, easy. Like most of it was doable and it had similar kind of questions like modal verbs दिए थे and there were a couple of questions wherein multiple lines were given and asked that which of the following lines has the thing. Okay, and also there was one question which I found incorrect in VRC was the tense based question. It was asking past perfect tense, बट जो एक्चुअल क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट उनने दिया था उसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था. सो दैट वाज वन ऑफ द मिस्टेक्स इन द पेपर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट QA अगेन देयर वर सम क्वेश्चंस दैट वर वेरी लेंथी इन QA. कुछ like one or two I did not attempt those questions. I found them slight ambiguous as well. And reasoning, if I talk about, again same kind. Some of the questions it was dominated by critical reasoning also. There were some, means the coding decoding ones were lengthy questions. There was a question on binary logic again this time. That was again time consuming question. So I found that compared to first slot, reasoning was on the lengthy side. How many of you agree कि reasoning इस बार lengthy था पिछले बार के मुकाबले? If you attempted both the slots, reasoning comparatively lengthy. जो individual questions भी आए थे coding decoding वो थोड़े से lengthy थे and like it took time to solve those questions. And also there was one question, very long sequence of letters given. So reasoning was lengthy, काफ़ी lengthy था पिछले मुकाबले. Quant I would say कि maybe one or two questions थोड़ा सा रहा होगा, बट कंपैरिजन में करूँगा कि 1-2 मार्क्स इसमें कम चले जाएंगे. लाइक एटलीस्ट 2 मार्क्स का डिफरेंस होना चाहिए. सो स्नैप 1 से ज़्यादा डिफ़िकल्ट था आज का पेपर. स्पेशली रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग लाइक लास्ट टाइम इट वाज सम क्वेश्चंस वर इजी. मतलब जो जैसे क्या कहते हैं उसे, जो आपका ये था critical reasoning, this was present less and some of the questions were weird. Okay, very lengthy, some long tests given, coding decoding also lengthy. Binary logic was again present. There was one seating arrangement question which had 2 questions. Although I found that was different, मतलब वो नहीं बनता क्योंकि if you have 7 people you cannot have person sitting opposite, but still I did it that way. Okay, and okay, 49 this time, for 51, great Abhimanyu. Yeah, so attempts might vary, but for generally for most of the people who I spoke to, they said that ki like there was a slight decrease in the number of attempts. Most of the aspirants saying that those who attempted like 1 or 2 question less as compared to last time. So I also felt the same. I don't know, maybe some might have found this one easy. And again I believe that for see, they will take best of the 3 scores. So the ones who had attempted snap 1 and 2 and with equal precision, so I believe that snap 1 में ज़्यादा स्कोर आएगा as compared to today, because आज का पेपर थोड़ा लेंदी था. रीजनिंग एटलीस्ट आई फाउंड कि पिछली बार से लेंदी थी. वर्बल वॉज ऑन द ईजी साइड एंड क्वांट अगेन सिमिलर. क्वांट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं था. कुछ क्वेश्चंस थे. देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. देयर वाज वन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, दैट वाज एन ईजी वन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर लाइक क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल डिफरेंट टॉपिक्स. ओके, सो ऑल इन ऑल लाइक 1 or 2 मार्क्स का डिफरेंस आएगा. कट ऑफ विल बी ऑन सिमिलर रेंज. जितनी उसमें जाएगी 1 मार्क्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट येस दे विल एक्सेप्ट बेस्ट ऑफ 3. सो that is the thing. And advice for the ones who are going to write in the 3rd slot is that कुछ चीज़ें जो डेफिनेटली आ रही हैं, जैसे एक कंपाउंड वर्ड आ रहा है और मॉडल वर्ब्स पे क्वेश्चन आया था. दैट वाज एन ईजी वन दो. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर क्वेश्चंस ऑन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के इस बार काफ़ी क्वेश्चंस थे. 2 तो कैलेंडर बेस्ड ही आए थे, 1 क्लॉक बेस्ड भी था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस बार क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा सा कम हुआ है. लास्ट टाइम क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा था, इस बार कम था. इस बार थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस बन गए थे. क्वांट हाँ, बाइनरी लॉजिक पे भी एक क्वेश्चन था. आई
spent some time, I realized that it was not doable. I marked none of these because मुझे दो लोगों की कंडीशन में सही बन रहे थे, ठीक है. फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों से सही बन रहा था. अमर और अकबर दोनों के दोनों टोटल 2 केस बन रहे थे मेरे. सो आई डोंट नो, आई डिड नॉट चेक इट अगेन बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट द एंटायर थिंग. Okay, model verbs, compound, yes, input output was also there, though in fact 2 questions on input output. One was number based, उसका logic I will tell in the explanation that how it was like 13 written. उसका 768 वाला आंसर था जो 768 से स्टार्ट था, और एक और इनपुट आउटपुट आया था. देयर वर 2 क्वेश्चन, सो इट वाज ऑल इन ऑल लेंदी एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम कि इनपुट आउटपुट भी था. देयर वाज कोडिंग डिकोडिंग ऑल्सो, सम लॉन्ग वर्ड लिटरन, मैट्रिक्स बेस्ड, सीरीज बेस्ड कन्फ्यूजिंग था. ऑल्दो आई थिंक दैट इट शुड बी 13, वो 13-14 वाला बन रहा था. आई डिड बाय ऑल्टरनेट सीरीज एंड गॉट द आंसर 13. और उसके अलावा एक मैट्रिक्स बेस्ड था, दैट वाज एन ईजी वन. AB327, that was cubing of the number, so that cube of 27 I chose as the answer. Okay, 7, yeah, so one input output was Barnala, starting from Barnala, that Barnala and Bhatinda ending, ठीक है. और yeah, these were some of the questions. So I have the questions, I will discuss them later, and also advise that what should be done for snap 3. So in short, स्नैप 1 से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा लेंदी रीजनिंग हो गई थी, तो रीजनिंग इस पेपर को लेंदी बना देगी. लास्ट टाइम जैसे क्रिटिकल रीजनिंग था वो कम टाइम लेता, इस बार ज़्यादा लगेगा. और डिसीजन मेकिंग के भी लंबा पैराग्राफ आया था. सो रीजनिंग अगेन, एंड क्वांट वॉज ऑन सिमिलर लाइन. जैसा फर्स्ट स्लॉट में था वैसे ही क्वांट यहाँ भी आया था. तो व्हाट आई वुड से इज, जिनने स्लॉट 1 वर्सेस स्लॉट 2 दिया है, दे हैव बेटर चांस टू स्कोर एट स्लॉट 1. ओके, एंड that is like I'll conduct a session discussing the questions. I have written the questions, most of the questions, and I will discuss them that what were those questions और कैसे अप्रोच करना था. हाइट्स एंड डिस्टेंसेस अगेन एक क्वेश्चन आया था, 40√2 उसका आंसर था. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन. और लाइक आई टुक सम सेशंस, उनसे काफ़ी चीज़ें हिट की होंगी. जैसे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस था, एक सफिक्स वाला क्वेश्चन भी आया था. ओके, दैट वाज हाइड्रोफोबिया, एंड लाइक या these were some of the questions which I could recall as of now. I'll create a solution video wherein I'll discuss the questions that were asked and what should have been the approach. So कुछ चीज़ें जो अभी तक कॉमन रही हैं, एक तो वो जो लाइन बेस्ड क्वेश्चन 4-5 लाइन दे रहे हैं, मॉडल वर्ब से क्वेश्चन आ रहा है. देयर इज़ अनदर क्वेश्चन ऑन इंग्लिश. आई फाउंड दैट वाज ईजी ऑन द साइड. कम टाइम लग रहा था, 5 मिनट में कर सकते थे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट लगे होंगे. ओके, एंड reasoning, they had increased the difficulty level this time. Difficulty in the sense it was lengthy, ठीक है. ऐसे difficult नहीं था कि नहीं हो पाएगा, but lengthy कर दिया. तो given the time constraint, it would have taken more time to attempt these questions. Okay, and even those some of the like decision making questions were lengthy. You had to read the entire paragraph and then react, and coding decoding and all would have taken time to solve. वो जो last time थोड़ा easy थे, इस बार थोड़े लेंदी हो गए. क्वांट एट पार जैसा पिछली बार था, ऑलमोस्ट सिमिलर. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स अच्छे से कर लेना. आई क्रिएटेड वीडियो फॉर दैट. इस बार भी 2 क्वेश्चन आए थे, कैलेंडर बेस्ड और क्लॉक बेस्ड भी एक आया था. क्लॉक बेस्ड वॉज ईजी वन. और उसके अलावा लाइक मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चन जैसा स्नैप में आता है, टिपिकल स्नैप. ओके, सो लेट्स सी दैट हाउ इट गोज इन द स्नैप 3. सो दैट वॉज अबाउट दिस एग्जामिनेशन. आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया. और सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ मच यू अटेम्प्टेड, हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग. और फिर उस पर हम स्नैप 3 के लिए भी आई विल टेक अप सम सेशंस. आई विल डू द वीडियो सोल्यूशन ऑफ टुडेज पेपर. आई हैव नोटेड डाउन सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आई रिकॉल. और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो सो दैट आई गेट मोर आइडिया कि हाँ ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था. एंड नो काउंटिंग फिगर्स इन बोथ द, हाँ काउंटिंग फिगर्स नहीं आया था, बट ग्रिड बेस्ड पज़ल आया था जिसमें, वो तो इजी था. ग्रिड बेस्ड पज़ल सीरीज़ 1-2 सीरीज़ थी. ओके, सो अगेन टिपिकल स्नैप पेपर. जस्ट सम क्वेश्चंस मेड दिस स्लॉट लेंदियर बिकॉज ऑफ द LR पार्ट, एंड क्वांट एट पार विद द फर्स्ट स्लॉट. ऐसा कोई मुझे ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं दिखा कि क्वांट ईजी हो गया, ठीक है. जैसा पहले में आया था तो वैसे ही इस बार भी था, ठीक है. देवर क्वेश्चन फ्रॉम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, लाइक DI भी आया था उसमें. लाइक थोड़ी कैलकुलेशन करनी थी. आई डिड नॉट डू वन, आई डिड 1 क्वेश्चन फ्रॉम द DI.
और बाकी इनपुट आउटपुट देयर वर 2 क्वेश्चंस, तो उसमें टाइम लग रहा था, 1 मिनट में करने वाले क्वेश्चन नहीं थे. सो दैट इज़ वाई आई बिलीव दैट दिस टाइम द स्कोर्स माइट बी लो, बट अनफॉर्चुनेटली यू गेट मार्क्स फॉर द बेस्ट ऑफ द 3. ओके, सो यू डू नॉट गेट कि आपने स्नैप 1 वर्सेस 2, नॉर्मलाइजेशन तो होता नहीं है. Let's see how it is in snap 3. Let's hope that it turns out to be easy and the ones appearing in that score well and are able to score, but definitely this slot will have lower score as compared to first. हाँ, अगर किसी का सेकंड में ज़्यादा आ रहा है, that means they did much better in today's examination, but for a normal candidate I would say the average score should drop by 1 or 2 marks, maybe 2 marks or 1.5 marks or so. Yes, I will be writing snap 3 as well. Before that I will be doing some more sessions, ठीक है, स्पेशली एक आज के पेपर का डिस्कशन और एक दो टॉपिक्स विच आई फील शुड बी कवर्ड, जैसे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कल कराया था, तो किसी ने अगर सीखा होगा तो वो कर लिया होगा 40√2 वाला. और उसके अलावा आई बिलीव कि देर आर सम टॉपिक्स विच आर बीइंग आस्क्ड, सो वो भी हम नेक्स्ट 2-3 days में आई विल टेक अप सेशंस फॉर दोस. Alright, so that was about this paper. I hope you did it well in the examination. Please do like this stream and let me know in the comments कोई जो question याद है, so that I also gather अच्छा ये भी question आए थे and I solve them for you. I have done most of the questions and will be discussing them in a video later, maybe tomorrow. Okay, so thank you guys for watching this and all the best for snap 3.